Yes. Good afternoon. चलो चलो कौन शेयर करना चाहते हैं उन्होंने कल what did they do to make their heart happy? कुछ ऐसा खास किया कि नहीं कर पाए? It was a usual day या फिर heart magic किया and how did they feel? Who wants to share? मैं शेयर करूं? हाँ बिल्कुल. मैंने कल अपने फ्रेंड के लिए बताया था कि आई टॉक एंड आई फील वेरी गुड फॉर द हार्ट मैजिक. आई डिड दैट टुडे एंड बिफोर दैट आज सुबह आपका मैसेज जब आया था कि गुड न्यूज इज वेटिंग, जो एवरीडे हम लोगों को बोलना है. एंड टुडे ओनली आई गॉट अ गुड न्यूज फ्रॉम माय सेम फ्रेंड that he started his new business which he was long awaiting for. Okay. And we all were praying for that business. So that was really a very big news for me. Plus उससे बात करके वो जो मुझे फील होता है, that was really wonderful. And today मैंने इतनी हम लोग ने हंसी, मैं यही सोची कि बात तो करते हैं ठीक है, बट आज एक स्पेशल था. मैंने each and every line में we were laughing. Wow. So it was a wonderful feeling. Very nice. Great. Amazing and congratulations. Thank you. Good. Yes. और किसने हार्ट मैजिक किया and they felt anything different? या फिर कुछ डिफरेंट किया कल to please their heart? सबने किया ना हार्ट मैजिक? Yes, किया था. Okay. कल मैंने बहुत सारा गाना गाया. अच्छा तुम्हारे गाने से याद आया, we can do something ना. अभी जैसे लास्ट वीक है, आज अब हमारा this is day 21st, तो टिंकू तुम खाली अकेले में गाना गा ली यहाँ पर आज गाना एंड में, ठीक है? हम लोग सब साथ में गाएंगे तुम्हारे. yes. और कोई है जो जिसको सिंगिंग का शौक है? Anyone else? अनुजा? अच्छा, मेरी शेयरिंग भी है आज. Okay. Wow, I am waiting. 3-4 महीने से दीदी I had a breakdown in my uterus. Okay. So I was going below the line कि how I will go to the doctor and what will happen and something. But instantly I was giving my gratitude to my uterus every day in the morning. और नहाते वक्त भी मैं करती थी रोज मतलब रोज 6 महीने से तो रेगुलर था. और today I got this news कि I am absolutely fit. Oh wow. This is such a great news. Great news. I am so happy today. I am so relieved today. Everything is going एकदम आराम से. Amazing and congratulations and abundance of health to you. Thank you, Didi. Thank you. Very nice. Amazing. Great. Yes. बाकी सब we have started giving gratitude to our health and body parts every day. Yes. Okay. Yes. Magic steps आज भी किया या फिर खाली एक दिन किया था उस दिन? I did today also. Okay. Very nice. Yes, Varsha. And 5 elements also. Oh, very nice. Great. Yes, दी बोलिए. क्या किया कल खास? I just spend my time with my terrace garden, on my terrace garden with my plants. I was very happy. Okay, very nice. And you said कि I will call up my husband and I'll tell him from the bottom of my... I told him. So he said क्या पागल हो गए हो क्या, कुछ खा के आए हो जो अचानक फोन पे? I'm just going for 2 hours to office because हमारा market area में तो it's more of a lockdown case only. So he goes around 1:30, 2 and comes back by 5. So बोले ऑफिस गए हुए 2 घंटे नहीं हुए कि उसने फोन करके बोल रहे सुना I love you. So बोले are you mad? मैं बोली नहीं, मैं बोली इसमें क्या I love you. Wow, nice. Even yes, after the जैसे सेशन एंड हुआ ना,
You know, I was so inspired by you. I thought, you know, let me call up my husband and कुछ बोलती हूँ. So, you know, even, you know, just I was thinking and he called me up, you know, कि कहीं चलना है क्या? चलो Oh कहीं wow, आसपास कॉफी वॉफी. मैंने बोला वाह, you know, you just think about something and something and it happens. Many a yeah, time that happens with me. And yeah. nowadays, more often it happens with me where I've joined those magic sessions. So even he is very positive and even like he's like तो अब तो कुछ भी आप अपना बस magic चला दो यार बस बोले oh how sweet of you. Very nice. Yeah. Okay. When I am with me myself, then I feel very happy. Okay. And why are you not happy when you are with others? No, मैं Mute हो गई. अपना कंपनी भी बहुत पसंद करती हूँ दी. Others तो है ही दी. तब No ठीक है. issue. हाँ. There is no issue. But हाँ, with me, तब I am ठीक. very happy. वेरी गुड. हाँ, सबसे पहले तो अपना ही कंपनी अच्छा लगना चाहिए. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली अपना ही कंपनी Yes, अच्छा yes. लग रहा है. So it's the me time which gives you happiness, love for yourself, love for your me time. We enjoy that even. We all need our me times. We all need our Yes. space, individual space. Everyone needs. Yes. Great. Okay, कहाँ से disturbance आ रही है बहुत? हाँ, कौन बोल रहा है? कि मैं नेहा मैं बोल रही हूँ. मैं पूनम जी को ना सच्चे गुड आइडिया देने के लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी. बिकॉज ऑन डे बिफोर यस्टरडे शी सेड ना कि मेरा बेटा जो सुबह इतना क्रैंकी करके उठता है, शुड आई यूज द मैजिक बैंड. तो मतलब मेरा बेटा का भी यही हालत है दी. सुबह उठेगा क्रैंकी, रोना धोना स्टार्टेड. तो आई यूज दैट ट्रिक मैजिक बैंड एंड सीरियसली इट्स मिरेकल. वाह. Thank you, Poonam, for a nice idea. Yes. Always welcome. It Poonam works. ने, Really yeah. works. Yes. Yes. Very nice. So we are all using magic dust. हम लोगों को सब मतलब 3 weeks we have done. It's the last week. And 3 weeks में everyone has done magic rock every night. Yes. Yes. अच्छा, तो मुझे कोई न्यू पर्सन बताएंगे. Yes, Sonal, what do you do in magic rock? रात में सोते टाइम व्हेन लाइक एवरीथिंग इज डन, सोने के पहले जस्ट रॉक को हाथ में लेके मुट्ठी में बंद करते हैं एंड पूरे दिन में जो भी अच्छा चीज हुआ है, सबसे बेस्ट जो चीज हुआ है उसको याद करके 3 बार थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी. एंड यूजुअली मेरा वो उतना तक पहुंचता नहीं. यूजुअली आई डोज ऑफ उसके पहले. बट देन हाँ, बहुत अच्छी नींद आती है. एंड एक और चीज दो चीज मुझे शेयर करना था. मैंने जैसे 2 मंथ्स पहले मैंने एक जॉब ज्वाइन किया था, बट आई वाज डूइंग इट वाज नॉट माय फॉर्टे. वो मतलब एकदम डिफरेंट फील्ड था. आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट. तो बट येस्टरडे आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल नॉट कंटिन्यू विद इट. बट मुझे न्यू ऑफर भी आ गया है. आवाज चली गई तुम्हारी. हेलो, अब आ रही है? हाँ, यस. हाँ, तो आई लेफ्ट दैट जॉब येस्टरडे. मुझे बहुत बोला भी मेरे कलीग्स ने कि मत छोड़ो, लाइक ट्राई करो. आई टोल्ड नहीं, मेरा मतलब लाइक आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. सो मुझे कल ही जॉब ऑफर भी आया है नया. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Congratulations. सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. मैं आज सुबह से इतना खुश हूँ. मतलब 2 मंथ से मैंने अपने बेटे के साथ एक दिन भी टाइम स्पेंड नहीं किया है. एंड आज पूरा दिन, कल पूरा दिन, आज पूरा दिन आई हैव बीन प्लेइंग विद हिम लाइक मैड पर्सन. एंड वो इतना खुश है, मम्मा मम्मा करके मुझे छोड़ ही नहीं. वाओ. और जो मेरे हस्बैंड और जो आकाश यूज्ड टू टेल मी ऑडी के लिए भी ना, तो आज सुबह उसको ऑफिस जाने में लेट हो रहा था. हेलो, हाँ, बोलो. हाँ, ऑफिस जाने में लेट हो रहा था. तो वो खुद से आज पहली बार मेरे को चला के बोला, तुम्हारा कि i20 होता रेड वाला, तो तुम मेरे को छोड़ आती जल्दी से. और तुमको पता चला ना. अगर तुम आती कि मैंने उसको नहीं बोला, लेकिन उसको खुद को याद आ गया ये बात. बोलते आएगा जल्दी आएगा i20 तुम्हारा. कल से 2 गुड थिंग्स हैव हैपेंड. आई वाज सैड फॉर इट. और हाँ, मेरे कजन है, उनसे मैं बहुत फ्री हूँ. तो कल आई वाज लिटिल ब्रेकडाउन था कि छोड़ दिया ऑफिस एंड ऑल, कैसे होगा. बट देन रात में अराउंड 1:30 उनका खुद का ही कॉल आया. वी टॉक, मतलब बहुत देर तक बात किया रात में. तो बहुत अच्छा सब कुछ लगा कि बहुत पॉजिटिविटी लगा, अच्छा लगा.
ग्रेट ब्रेकडाउन है, ग्रेट। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। यस, बट जो भी तुमने जॉब छोड़ा है ना पहले वाला, राइट डाउन एटलीस्ट मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड फॉर दैट जॉब। जो भी उससे कुछ भी सीखा या कोई उसमें ऐसा था जो अच्छा था, एनीथिंग व्हाट यू, जो भी मिला उसमें से। आज सुबह ग्रेटिट्यूड लिस्ट में आई हैड रिटन 2-3, मतलब जो मेरे कलीग से या सर थे उनके नाम से, आई विल राइट मोर देन। पूरा कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। हाँ, ओके, बिकॉज राइट, छोड़ दिया ठीक है, बट एटलीस्ट फॉर सम मंथ्स इट केप्ट यू ऑक्यूपाइड, है ना? या तो उसके लिए छोड़ते टाइम भी ऐसे कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। या आई डिड दैट, आई थैंक माय कलीग की थैंक यू, आप 2 महीना मेरे को बहुत कुछ सिखाए किए, ओके कुछ और मिलेगा। माय मॉम आल्सो टोल्ड मी कि कुछ और अच्छा होगा, इसलिए ये छोड़ना पड़ा, तो डोंट बी गेट स्टार्टेड। yes, there's always something good going to happen. You have to always believe कि कुछ ना कुछ अच्छा होने ही वाला है ना? And जहाँ पर मतलब you are not enjoying that job, that means it is not your bliss. It is Actually, I was not enjoying it. It yeah. was not my forte, but I just joined it कि बहुत दिन बाद मिला है, so I tried it, but नहीं हुआ, तो it is no point dragging it ना, अपने आप को भी मतलब प्रेशराइज करके इतना, तो I just decided कि ठीक है चलो छोड़ते, कुछ और ट्राई करते। Yes, जो भी होगा बेटर ही होगा। Thank And you, congratulations and all the best. thank you so much. Yes. And जैसे मैजिक रॉक इन्होंने बोला, जैसे सोनल ने कहा, तो what happens कि जो वो बेस्ट मोमेंट होता है ना, बेस्ट थिंग जो होता है हमारा उस दिन का, we call it magic moment. Okay, that moment is called magic moment. तो अभी 3 week, everybody please mute yourself. I don't know किसके पास से आवाज आ रही है, मेरे ही पास से आ रही है क्या? There's some disturbance. Okay, तो 3 weeks तक हम लोगों ने ना बहुत सारे मैजिक मोमेंट्स वी हैव रिसीव्ड, एंड हम लोगों ने उसको बहुत थैंक यू किया है। दैट वी विल कीप डूइंग मैजिक रॉक। बट अभी लास्ट वीक में वी विल थिंक ऑफ गिविंग मैजिक मोमेंट्स टू अदर्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब आप किसी को कैसे मैजिक मोमेंट दे सकते हो, यू नो व्हेन कभी आप, हाँ यस वर्षा। दी एक्चुअली पूनम जी के यहाँ से शायद आवाज आ रही है, पूनम जी प्लीज। इट्स ऑल म्यूट ओनली, मतलब एकदम सिटिंग। आपका एसी ऑन है क्या पूनम दी? नहीं, मेरा एसी खराब है। It's okay, yeah. दी yes, I wanted to share, day before yesterday मेरी friend का she is doing some Serenity products के products रखे उन्होंने, so she was not able to, क्या बोलते हैं वो, अपना खुद का brand promote नहीं कर पा रहे थे, so I promoted in 2-3 groups also, and then she got an order of around 11 to 12,000 just on the basis of कि yes, I have told कि I'm feeling it very nice, it's really nice, the products are very good, so she got the order for 11,000 and she was like yes, you made my moment of the day. Yes, so you feel so happy that yes, you could be a person that could just make a special moment in others life, so it's really wonderful feeling. yes. तो how would you feel कि अगर कोई आज रात में अपना मैजिक रॉक लेकर याद कर रहा है कि आज का दिन का बेस्ट मोमेंट कौन सा था, एंड वो आपके बारे में सोच रहा है कि उसने जो आज मुझे बोली थी ना वो बात, उसने जो आज मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ टुडे, दैट वाज माय मैजिक मोमेंट। हाउ वुड यू फील दैट? हाउ वुड यू फील कि कोई आपको याद करके अपना मैजिक मोमेंट को थैंक यू कर रहा है? ओके, सो बी द रीजन फॉर somebody else's magic moment, और बहुत जेन्युइनली करना है। इट इज नॉट कि आपको ऊपर से किसी को थैंक यू कर देना है, नहीं। कोई भी आपको, आप कभी इतना जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे दो किसी को, पूरे दिल से किसी को कुछ उसकी अच्छी बात बता दो, किसी ने आपके मतलब कोई भी, यू कैन डू इट फॉर एनीवन। तो आई होप यू विल ट्राई आज के बाद, आज से दिस लास्ट वीक एवरीवन। Sure. Yes. यस, तो हम लोगों ने अपने मैजिक मोमेंट्स के लिए थैंक यू कर लिया, बट वी विल क्रिएट मैजिक मोमेंट्स फॉर अदर्स, एनीवन, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर
पेरेंट्स, एनीवन, जरूरी नहीं है कि वो मैजिक बुक में है और वो रात में मैजिक रॉक करेंगे, बट उनके दिन का वो बेस्ट मोमेंट हो सकता है। योर वन, ऐसा कुछ जो आपने इतना दिल से बोला, वो उनका उस दिन का बेस्ट मोमेंट था। अच्छा, we have to do something for someone जो उनको best लगे, that they are happy for because of us, and we have to become the Yes. reason for somebody's smile. या उनका दिन का वो लगे कि आपने किसी का दिन बना दिया। Okay. ओके, ठीक है। यस, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस चैप्टर। इट्स वेरी वेरी नाइस, है ना? मैं I would सारे like to read today. आज तो नेहा जी का वो है, नेहा जी ने बोला है उसको रीड करना है। आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। No, it's okay. Yes. Raji, you go ahead. No issue. Thank you. दो पेज वर्षा पढ़ लेगी, 2 पेज तुम पढ़ लेना नेहा, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है दी। ओके, तो इट्स अबाउट मैग्निफिसेंट आउटकम, ठीक है? आउटकम्स हम लोगों को ऑलवेज मैग्निफिसेंट ही चाहिए होता है ना, किसी को भी आउटकम्स खराब थोड़ी चाहिए होता है। कोई भी चीज में भी और लुकिंग फॉर आउटकम्स, है ना? कुछ भी ऐसा, एनीथिंग, कोई एग्जाम है, कोई बहुत बड़ी चीज है जिसमें हम लोगों को आउटकम चाहिए। आउटकम मतलब रिजल्ट चाहिए, हम लोग वेट कर रहे हैं उसका, कि उसका अच्छा रिजल्ट हो। मे बी इट कैन बी एनीथिंग, जैसे अभी ना Going to a dentist. या गोइंग टू अ डेंटिस्ट एंड यू आर होपिंग ना, हम लोग हमेशा होप करते हैं कि अच्छा उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आए, वो ये नहीं बोलते कि ये करना है वो करना है, नहीं। या फिर अभी जैसे वैक्सीनेशन स्लॉट्स नहीं मिल रहा था, एंड आई वाज बैडली लुकिंग कि स्लॉट चाहिए। इमीडिएटली आई वाज जस्ट होपिंग कि मिल जाए, बट जैसे ही मैग्निफिसेंट आउटकम अप्लाई किया ना, वो इमीडिएटली मतलब हमारे रिजल्ट्स, मतलब वो बहुत जल्दी उसको पावरफुल कर देता है, whatever we are hoping for. So let's see what is it and how we can create magnificent outcomes. And ये बहुत मतलब सबसे ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड यही है। कौन कौन इसको सबसे ज्यादा यूज करता है? मैं तो बहुत ज्यादा, मतलब दीदी मैं तो डेली यूज करती हूँ। यस, बहुत ज्यादा यूज करते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। यस, ओके, yes. Yes, who will start? Varsha or Neha? Day 21. आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर लो, नो इशू। Magnificent अरे कोई बात नहीं outcomes. नेहा, आज तुम पढ़ लो, मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लूंगी। अरे दो मिलके पढ़ लेते हैं, शेयरिंग, 2 पेज मी 2 पेज यू। No, sharing is caring, that I love about you. या आज पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, मैं कल पढ़ लूंगी, एक ही बात है। Thank you. It's okay, welcome, start. You say grace before meals. All right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the link. G.K. Chesterton, 1874-1936 writer. Yes. तो ग्रेस क्या होता है? ये जनरली ना द पीपल जो बाहर में, अब्रॉड में, whenever they say thanks before meals, उसको उन लोग ग्रेस बोलते हैं। उन लोग वो ऐसे हाथ सब ज्वाइन करते हैं खुद एक सर्कल में बैठकर, एंड कुछ वो उनका एक अलग सा प्रेयर होता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेस। बेसिकली हमारे लिए इट मीन्स थैंक यू। तो वो बोल रहे हैं राइटर जीके चेस्टरटन कि हम खाने के पहले तो थैंक्स बोलते ही हैं, बट मैं हर चीज के पहले थैंक्स करता हूँ। वो राइटर हैं तो वो बिफोर स्टार्टिंग टू राइट अ बुक, अगर वो पेंटिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो ही इज वॉकिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज डांसिंग। पैंटोमाइम एक तरह का एक्ट होता है जहाँ पर कुछ एक अलग तरह का, इट्स एन एक्ट। कोई प्ले अगर ये दिखने जा रहे हैं या मे बी परफॉर्म कर रहे हैं, वॉट एवर, बिफोर एनी कॉन्सर्ट, he always uses thank you before that, not just before having his food. Okay, continue. We all want good. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Pardon? I should continue?
Yes. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of a luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Yes. तो आप लोग जब होप करते हो ना, आप लोग नहीं, मतलब हम लोग बहुत बार होप करते हैं। अब किसी का मतलब जॉब पे ही हमने अप्लाई किया है एंड बहुत जगह मतलब रेज्यूमे डाला है अपना, एंड वी आर होपिंग यहाँ से आ जाए, मुझे तो यहीं से चाहिए, और कहीं से आए नहीं चलेगा, बट यहाँ से ऑफर आ जाए, है ना, वी आर होपिंग। तो होप करना, ऑलवेज चांस पे छोड़ देना। होप में क्या है, चांस में क्या है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, इट्स अ चांस। बट लाइफ डजंट हैपन बाय चांस। लक पर आप कोई चीज छोड़ रहे हो, चांस पे छोड़ रहे हो, दैट इज नॉट हाउ यूनिवर्स वर्क्स। यूनिवर्स में प्रॉपर लॉज है, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट्स लॉज। वहां पे देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्लूक। ओके, लक से हो गया, चांस से हो गया, फ्लूक से हो गया, नथिंग। पूरा एकदम मैथमेटिकली ऑपरेट करता है यूनिवर्स टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री। इतना फाइनेस्ट ना कि यू कांट इमेजिन। जब वी हैड सीन ना दैट क्या था वो, मिशन मंगल था ना मूवी, जो देश से वहां पे कोई वो लोग, हाँ, सैटेलाइट कुछ भेजते हैं बाहर, समथिंग। तो मतलब उसमें आपने देखा होगा, मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेशंस, इतना मतलब अगर 1 डिग्री, अगर 0.0000001 and 0.5 डिग्री भी अगर कुछ इधर का उधर हो गया ना, that satellite will not go to the place where it is wanted. Exactly the similar way, एकदम finest possible degree पे mathematically universe is working. It is not working कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, no, it is not working. पूरा laws पे based है. Yes. A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into the space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. Just imagine, हाँ, everyone just imagine कि हम plane में बैठे हैं and we are all ready for our flight and pilot अपना seat belt बांध रहा है and बोल रहा है I hope this flight go, मतलब है ना, ठीक से उड़े, ये I hope। हम लोगों को कैसा फील होगा, all the travelers, oh my god, he is hoping। हम शायद सब उस फ्लाइट से उतर जाएंगे कि हम लोगों को ऐसी फ्लाइट में नहीं बैठनी है जहां पर कोई होप कर रहा है ना। एग्जैक्ट जितने भी लॉज है वहां पर, फ्लाइंग के भी बहुत सारे लॉज है, मतलब एग्जैक्ट इतनी डिग्री में ये होना चाहिए, इतना उतना ये कॉम्पस घूमेगा, एग्जैक्ट हर चीज एकदम उस हिसाब से वर्क करती है। ही डजंट होप ना कि वो, तो उसको मालूम है कि कैसे वो वर्क करेगा। ग्रेविटी के लिए हम लोग कभी होप नहीं करते, hope we don't float today. No, we know what will happen. वो एक पूरा universal law है. Similarly, what happens? Yes. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for the magnificent outcomes is one of the simplest way to do it. Yes. तो अगर हम लोगों को किसी भी चीज में आउटकम्स चाहिए, जो हम लोगों को जैसा चाहिए वैसा हो, है ना, मैग्निफिसेंट आउटकम्स, मतलब सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स जिसको बोलते हैं, बेहतरीन परिणाम, तो हम लोगों को उसके लिए भी एक लॉ यूज करना पड़ेगा, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफ वी आर यूजिंग, तो वी हैव टू बी वेरी श्योर, पहले तो उसका मतलब कैसे यूज करना है, उसका यूजेज हम लोगों को पूरा पता होना चाहिए, कैसे यूज करना है। इफ वी आर यूजिंग इट द राइट वे, 99% ऑफ द टाइम इट वर्क्स ऑन द वे वी वांट, अनलेस देयर इज सम, उसका कुछ यूजेज का तरीका में कुछ गड़बड़ है। यस। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law.
You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home, the magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or a wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Yes. तो यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों को मैग्निफिसेंट आउटकम्स चाहिए होता है, जहां पर भी हम लोग कुछ भी ऐसा मतलब वेट कर रहे हैं कि वो अच्छा जाए, जहां पर कुछ हम लोगों को ऐसा आउटकम होगा, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा उसका, है ना। एनी स्पोर्ट्स गेम, एनी फोन कॉल, या फिर सीइंग योर मदर इन लॉ, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट आई डोंट नो, बट स्टिल मे बी इट्स फॉर मेनी, सीइंग योर मदर इन लॉ, है ना। मे बी हमको अपने बच्चों से ही कुछ ऐसा उनके बिहेवियर के लिए बात करनी है, we want to have a conversation, है ना। हमने उनको बोला है कि आज शाम को बात करना है कुछ, but we don't know what the outcome can be, है ना। हो सकता है कि वो अच्छा नहीं जाए, हो सकता है कि हम पहले से ही सोच रहे हैं पता नहीं how will the person react, how will he react to that. It is not necessary कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। सपोज हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आया है, प्लम्बर आया है, ऐसा कुछ जो कोई प्रॉब्लम एड्रेस कर रहा है, एंड वी डोंट नो, क्या पता वो बोल 1 लाख का खर्चा है, ये पूरा टूट गया अंदर से तो पूरा पाइपलाइन चेंज करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। बट वहां पर यू आर होपिंग कि उसका आउटकम अच्छा हो, या फिर मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग समथिंग, कुछ आप खरीदना चाह रहे हो किसी के लिए, परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट, मे बी कोई एंगेजमेंट रिंग, कोई वेडिंग ड्रेस, कोई आप ट्रिप पर जा रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, कुछ उसके लिए, मे बी योर न्यू कारपेट, ड्रेप्स, कुछ भी हो सकता है। या फिर कितनी बार होता है ना, सपोज हमें कुछ आज मन है कि इस रेस्टोरेंट पर ही डिनर करें, बट वहां पर बहुत ज्यादा बुकिंग होती है और जरूरी नहीं है कि आपको सीट्स मिल जाए। कोई ऐसा कॉन्सर्ट, कोई ऐसा शो जहां पर यू वांट द बेस्ट सीट्स, एकदम सामने की सीट्स आपको चाहिए, यू वांट एकदम परफेक्ट सीट्स जहां पर आप, जहां सर आपको बैठकर यू कैन एंजॉय द परफेक्ट व्यू एंड परफेक्ट उसका कुछ भी। हमारा जो डेली ईमेल्स आता है हमारे, उसके लिए हो सकता है, क्या पता कुछ ऐसा आने वाला है, या फिर यू आर वेटिंग फॉर सम मेल टू कम which will be very मतलब which is very important to you, you don't know what, but anywhere, इतने सारे जगह, anywhere you can use magnificent outcomes. We all want magnificent outcomes, है ना। heart to heart with your partner, आज सोचा है कि आज हम अपने पार्टनर के साथ कुछ एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो अगर हम सिर्फ होप कर रहे हैं, इट कैन गो रॉन्ग ऑल्सो। क्योंकि होता क्या है, जनरली व्हाट हैपेंस कि वो रॉन्ग थॉट है ना पहले आ जाता है, वो पहले ही आ जाता है कि ओ गॉड वो ऐसा तो नहीं सोच लेगा ना, वो बुरा तो नहीं मान जाएगा ना, बच्चे जवाब तो नहीं दे देंगे ना, मना तो नहीं कर देंगे ना, ये मदर इन लॉ कुछ नया नियम बताने वाली है क्या, एनीथिंग, ऑलवेज दैट वन नेगेटिव थॉट वो पहले ही क्रॉप हो जाता है, जिसके कारण वो जो आउटकम हम चाह रहे थे, इट कैन गो हेवायर, पूरा वो उल्टा पुल्टा हो सकता है ना। जितना बार सपोज अभी कभी अगर बचपन में एग्जाम देने अगर हम गए होंगे, तो व्हाट आर वी होपिंग कि ये नहीं आ जाए। अगर आपने कभी एग्जाम दिया है और सपोज आपने बहुत कुछ पढ़ा है, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, बट वो एक चैप्टर शायद छोड़ दिया, या फिर सारे चैप्टर्स किए हैं बट वो एक पोर्शन छोड़ दिया है खाली, इट वाज सो बोरिंग एंड इट वाज सो डिफिकल्ट। एंड जब आप एग्जाम देने जा रहे थे एंड यू आर वेटिंग फॉर द पेपर, व्हाट वर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे थे? वो नहीं आए और वो आ जाए, वो नहीं आ जाए इस पेपर में सब कुछ आ जाए, बस वो नहीं आ जाए। एंड होता क्या है, बिकॉज वी आर थिंकिंग जस्ट दैट कि वो नहीं आ जाए, वो नहीं पूछ ले मैम, है ना। एंड
what happens कि when we open the test paper, it is the exact same question which you have not prepared. Always ऐसा ही होता है ना, टीचर कुछ पूछ रही है एंड हमको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, और हम मैम से छुपने की ट्राई करते थे, यू नो, ऐसे ऐसे किसी के पीछे कि मुझे नहीं पूछ ले, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, दूसरा वाला अगर पूछेगी तो मैं झट से बता दूंगी. बट वो सिंस यू नो वी आर अट्रैक्टिंग दैट थॉट, मुझे न पूछ ले, मुझे नहीं पूछ ले, कहाँ से मैम को हमारा चेहरा दिख जाता है पता नहीं, इतना अच्छे से छुपे थे फिर भी दिख जाता है. एंड शी पॉइंट्स आउट एट द एग्जैक्ट फेस एंड आप बताओ what is the answer, and we are so clueless, at that time, है ना. Always first natural thought always comes a negative thought, इसीलिए वो आउटकम का पहले ही रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया. तो दिस इज व्हाट इज कि हम अगर पहले से ग्रेटफुल हो रहे हैं फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम्स, तो वो नेगेटिव थॉट आएगी ही नहीं. यस, कंटिन्यू. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagining you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. ये मैजिक डस्ट तो you can use everywhere you can use, and magnificent outcome आप चाह रहे हो तो अब उसके लिए भी पहले से मैजिक डस्ट दे दो. Automatically you are inviting magnificent outcomes to that activity. Anything. Next time you are playing just a housey, you are playing a tambola, आप ट्राई कर लो इसको, ट्राई करके देखना. हाँ, जब जब नंबर कॉल हो रहा हो ना, ऐसे सोचना अब मेरा नंबर आ रहा है, मेरा नंबर कॉल हो रहा है, मेरा ही नंबर आएगा. ठीक है, अपने हमेशा जब आप हाउसी खेलते हो, देयर इज वन थॉट, मेरा कॉल ही नहीं कर रहा है, मेरा कट ही नहीं रहा है, होता है कि नहीं, खाली इसका ही बार बार इसी का आ रहा है, मेरा कब आएगा मेरा. मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है. ठीक है, मैंने कार्ड्स में ट्राई किया है इसको, मैंने हाउसी में ट्राई किया, मतलब आई एम जस्ट हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरा नंबर आ रहा है, अभी मेरा ही नंबर कॉल होगा, एंड आई 100% win that housing. She never used to win. She never. Housing में भी नहीं and no cards. But nowadays she only wins. कार्ड्स में खेलती हूँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ आई एम बॉर्न टू विन, ये तो मैं ही जीतूंगी. एंड देयर इज नो नेगेटिव थॉट बिफोर दैट. यू कैन ट्राई इट आउट. छोटी छोटी चीजों में ट्राई करो कि आप कोई नेगेटिव थॉट आने ही नहीं दे रहे हो, एंड यू आर जस्ट गिविंग इट positive thoughts for what is happening in that area. Just try out these small places. होता क्या है, you know, morning, suppose it is 5 o'clock in the morning and घंटी बजती है फोन की, you know, your mobile rings or the landline rings. First thought क्या आता है? Is it positive or is it negative? क्या thought आता है? It's negative. कहीं पे किसी का कुछ sad news या एग्जाम्स के बारे में नहीं. Yes. Why so early? Always negative thought आ जाता है. Oh God, क्या हो गया होगा? क्यों इतना सुबह किसने फोन किया? जरूर कुछ गड़बड़ है ना? कुछ ना कुछ always negative. क्यों हो सकता है कोई गुड न्यूज देने भी सुबह फोन कर ही सकता है, बट वो हमारा एक वो मेंटल वो है कि नहीं इतनी सुबह है तो कुछ बैड न्यूज, एंड वी आर अट्रैक्टिंग such bad news by this kind of behavior. This is just training of mind, nothing else. जो आज तक इतने सालों से, you know, it is oppositely trained. We have to do it just positively trained. Yes, continue. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and you're told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yes, तो ये second time है कि जहाँ पर कुछ भी ऐसा unexpected होता है. Unexpected. कुछ हम लोगों को मालूम है कि हाँ हमने कहीं अप्लाई किया है
या सपोज किसी का किड्स का एग्जाम है, या हमारा ही कुछ ऐसा नया केक का somebody has ordered us very different केक जो शायद मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, कुछ ऐसा जहाँ पे मुझे ये मेरे लिए एक चैलेंज टाइप का है। आई डोंट नो व्हाट कैन बी द रिजल्ट, उसका आउटकम क्या होगा, एंड आई एम होपिंग अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो ये सब हम लोगों को मालूम है, वी आर एक्सपेक्टिंग, बट मेनी टाइम्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, है ना। अचानक से somebody is calling एंड क्या हो रहा है मन में, नेगेटिव थॉट, ओ गॉड पता नहीं क्या बैड न्यूज देगा। अचानक से ऐसा कोई अननोन नंबर से कॉल आ जाता है फोन में, एंड इमीडिएटली वी आर थिंकिंग पता नहीं कोई फालतू कस्टमर केयर वाले का होगा, या कोई वो बैंक लोन वाले का होगा, लोन ले लो, लोन ले लो, व्हाटएवर। ऑलवेज कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो, योर जस्ट अ सिंपल योर in-laws, mother-in-law is calling you, एक बार आना इधर, even this you can just think पता नहीं what new, कुछ ऐसा नया ऑर्डर, नया कुछ रूल, whatever। तो what happens कि we always jump to conclusions, हम तुरंत उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट खुद ही इमेजिन कर लेते हैं कि जरूर ऐसा होगा इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है, जरूर ये होगा इसलिए ये फोन आ रहा है। एंड what happens कि because we are thinking something is wrong, law of attraction बोलता है yes, यही होने वाला है तुम्हारे साथ, whatever you are thinking वैसा ही exactly होता है हमारे साथ। So instead of jumping to conclusions, take this opportunity and bring the magic by being grateful for a magnificent outcome. Okay, you are not hoping for a magnificent outcome, आप उसमें भी होप नहीं कर रहे हो मेरे साथ मैग्निफिसेंट आउटकम हो जाए, नहीं, यू आर ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम। यस, कंटिन्यू। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. यस, तो हो ही सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। आज हमने को मतलब कहीं जाना है और यूबर मतलब यूबर ही नहीं आ रही है, यूबर शायद आया बट उसने लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया, या फिर ट्रेन हम कहीं न कहीं जा रहे थे, डिलेड हो गई, फ्लाइट पर कहीं जा रहे थे, डिलेड हो गया या पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया। तो कुछ ना कुछ अगर आप उसमें सपोज सपोज उसमें जैसे ही सपोज आपको न्यूज मिला कि वो कैंसिल हो गया, and it was मतलब it was important for you, maybe you are going to your mom's place after a long time, maybe you are going for some trip, जो भी whatever आप कहीं जा रहे थे, and that flight is unexpectedly delayed, or suppose you miss a flight, and उसके बाद है ना एक chain of thoughts आ जाती है दिमाग, पूरा एक chain, मतलब अब क्या होगा, या अब मैं कैसे जाऊंगी, कैसे फोन करूं, मैं कैसे बताऊं, बहुत ही घटिया ये एयरलाइंस है, इतने सारे थॉट्स, एक थॉट नहीं आता है उस समय नेगेटिव, पूरा एक चेन ऑफ थॉट्स आ जाता है। सो उसके बाद जो आपको चाहिए ना वो आ नहीं पाता है, उसके बाद यू वांट कि वो ठीक हो जाए, उसके बाद वाली फ्लाइट आपको मिल जाए, उसके बाद आप आराम से चले जाओ, हाँ मे बी 2 ही घंटा डिले हुआ, बट वो आ नहीं पा रहा है बिकॉज आपने उस फर्स्ट इंसिडेंट के बाद इतनी सारी एक नेगेटिव थॉट्स की चेन बना दी, है ना। एंड इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू इमीडिएटली, ऐसा कभी भी कुछ हुआ एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, उसके बाद इमीडिएटली आपने क्या किया है, यू हैव सेट द मैजिक इनटू मोशन टू रिसीव अ मैग्निफिसेंट आउटकम। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा मैग्निफिसेंट आउटकम होगा दैट यू विल सी, ओके या दिस इज नॉट बैड ईदर, ये भी उतना बुरा नहीं है, मे बी दिस इज बेटर, या मे बी या ओके इट वोंट उतना मैटर नहीं करेगा, शायद दिस फ्लाइट इज मच बेटर देन दैट, शायद ये वाले में तो हॉल्ट ही नहीं है, वाओ अच्छा हो गया कि ये हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ओके, यस। If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thoughts flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome.
before you pick up the call or open the email or a letter. Yes. तो जिन लोगों के भी बच्चे हैं ना एंड कभी भी स्कूल से कॉल आया है ऐसा कि ना टुमारो इज अ मीटिंग एंड यू हैव टू अटेंड विथ योर चाइल्ड, ऐसा कौन कौन लोग ना एकदम ऑनेस्टली बताना कि एकदम पॉजिटिव सोचे, हाँ जरूर मेरे बच्चे का कुछ तारीफ होने वाला है एंड दे हैव कॉल्ड मी। इसलिए ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं दीदी, कभी नहीं। हमेशा लगता है कि ओ गॉड अब क्या कर दिया होगा उसने, ऐसा क्या कर दिया, ओ गॉड अब पता नहीं क्या क्या बात सुनना पड़ेगा। हम पहले से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं एज इफ कि कोई जंग लड़ने जा रहे हैं एंड कभी आज तक उसका ऑपोजिट थॉट आता ही नहीं है। यू नो मे बी क्या पता स्कूल में इसने ऐसा भी कुछ किया है, वाओ द टीचर इज कॉलिंग मी, वाह ये तो बहुत अच्छी, आज तक नहीं आया होगा ऐसा थॉट। तो नहीं सबसे आता था। ओके गुड गुड। रिगार्डिंग माय चिल्ड्रन तो हमेशा पॉजिटिव ही आता था। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। तो Their PTM was like my paychecks. Okay. Yes. Amazing. Yeah. नहीं PTMs तो जैसे पता है ना they are expected, but जब ऐसे unexpected कुछ होता है Unexpected also, yes. Okay. मतलब Very but we nice. are prepared for it. It was not unexpected. I was prepared कि कुछ negative तो नहीं है. I knew it. Okay. Very nice. Amazing. Great. तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग ऐसे हैं yes which they think कि हाँ positive होगा, but generally अगर देखा जाए in general most of the parents the first thought flashes it, पता नहीं क्या गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। immediately कोई भी ऐसा unexpected phone call, कोई ऐसा मतलब you know एक suppose एक ऐसा टाइम है दिन में जब आपकी डोरबेल बजती नहीं है। एक यू नो कुछ टाइम होता है जब यू नो कि हाँ अब ये आया होगा, हाँ अब तो गार्बेज लेने आया है, हाँ अब वो मेड आई होगी, बट कभी ऐसा अननोन टाइम एंड द डोरबेल रिंग्स, आपको लगता है पता नहीं कौन आ गया होगा एंड क्या पता वो थॉट आपकी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। व्हाट आर यू थिंकिंग? यस कंटिन्यू। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Yes, it's guaranteed. अरे बहुत बार यूज किया है, हाँ कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है मे बी, बट जितनी बार यूज किया है ना 98% ऑफ द टाइम इट हैज। अब ऑब्वियसली अब ऐसा कुछ मैं मांगूंगी या ऐसा कुछ जो मे बी मेरी उसके लिए फीलिंग दूसरी है तो वो नहीं होगी ना। बट या मतलब क्या होता है, आप यू आर asking for a magnificent outcome and you are sincerely grateful for it, तो यूजिंग द मैथमेटिकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके कारण क्या होगा, इक्वल टू के बाद व्हाट विल हैपन इज यू विल रिसीव अ मैग्निफिसेंट आउटकम बैक। इट इज समवेयर एंड एट सम टाइम। अब जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली यू विल रिसीव, बट समवेयर एट सम टाइम आपने उसको मोशन में ला दिया है, मैजिक उसमें हो चुका है, इट हैज यू हैव सेट इट इनटू मोशन एंड इट इज गारंटीड। ओके यस। एंड कभी भी आप मतलब देखो ना, इवन फॉर आवर ड्रीम्स, इवन फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम, एनीथिंग, अगर उस समय आपको एक भी फीलिंग बिलो द लाइन वाली आ रही है ना, दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट। कोई भी अगर एक छोटी सी भी फीलिंग बिलो द लाइन वाली आ गई, ओके सपोज हम कुछ मांग रहे हैं और हम बहुत डर से मांग रहे हैं ऐसा मतलब यू नो मैग्निफिसेंट आउटकम, बट अंदर में बहुत एक डर है उसके लिए, या अंदर में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, या अंदर में डाउट है, मे बी कुछ भी, यू विल सी दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू कम ट्रू। उसमें एक भी फीलिंग बिलो द लाइन वाली नहीं होनी चाहिए, इवन फॉर योर ड्रीम्स। ओके अगर आप यू नो इफ यू आर very much passionate about your car, about your dream home, about your new shop, your new business, your new anything, whatever, जो भी, बट उसमें कुछ न कुछ है ना, आपकी फीलिंग्स में समथिंग इज लैकिंग, इट इज नॉट 100% सिंसियर ग्रेटिट्यूड।
मे बी देर इज डाउट, वरी, चिंता है वहां पे कुछ, है ना। भगवान के सामने कितनी बार आप बोलते हो ना, भगवान 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 ही मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बट आप जहां पर ऑलरेडी थैंक कर रहे हो, भगवान थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, दैट इज 100% ग्रेटिट्यूड विद सिंसियरिटी। जहां पर थोड़ा सा भी लैकिंग है, यू विल सी, या तो उस चीज को आने में अभी आपको बहुत टाइम लगेगी, या फिर वहां पर आपकी फीलिंग्स सही नहीं है। तो फीलिंग्स चार्ट मैंने इसीलिए शेयर की है। It is not a part of the magic book, but you have to know, if you want to receive your dreams, if you want to attract your dreams, if you want to attract magnificent outcomes, your feelings should be always above the line, not below the line. Okay, yes, continue. Excuse me, When दी, हाँ, दी मैं दूसरों के लिए भी सोच सकती हूँ क्या मैनिफेस्ट आउटकम? magnificent outcome दूसरों के लिए as in कोई एग्जांपल दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों का एग्जाम है तो जैसे थैंक यू दैट माय डॉटर इज डूइंग very nice in the exams and she had scored good marks in that subjects. Yes, thank you for the magnificent outcome, and उसके बाद जैसा तुमको रिजल्ट्स चाहिए, जैसा भी you want. Okay, Thank you. yeah. उसमें ये नहीं, मतलब डोंट थिंक कि मतलब कि वो एग्जैक्ट, हाउ डू आई से, मतलब सपोज ये मैंने ना, आई हैड डन विथ माय डॉटर, माय यंगर, अच्छा ठीक है, लास्ट में शेयर करते हैं, हाँ, आई विल शेयर इन द एंड आफ्टर रीडिंग, या ओके। Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps to protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you want, magnificent outcomes. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कंट्रोल नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। कितनी चीजें होती है जो हमारे हाथ में होती है, हमको पता है ये करना है, ऐसे करना है, उसका ये रिजल्ट है। बट देर आर मेनी टाइम्स मतलब जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, इट इज नॉट, हमने बस उसको कर दिया एंड नाउ वी आर होपिंग कि वो अच्छा हो जाए, एंड जनरली उसमें वो बैड आउटकम इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिव थिंकिंग्स, बिकॉज हम उसको चांस पर छोड़ दिए हैं। तो ग्रैटिट्यूड के कारण इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अट्रैक्टिंग दोज बैड आउटकम्स and it ensures that we receive magnificent outcomes. Yes. When you are grateful for the magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract in your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Yes. So this is not something कि one day की practice नहीं है। इसको आप एनी टाइम यूज कर सकते हो। जस्ट एक लाइन लिखनी होती है, अभी आएगी कि व्हाट यू हैव टू राइट। जस्ट एक लाइन लिखनी होती है एंड ग्रेटिट्यूड फील करना होता है, और उसको आप अपना एक हैबिट में डालना है बस। कितनी बार होता है ना कि वी थिंक, अरे मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गया, हाउ कैन, मतलब इस सिचुएशन में मैं कैसे आ गई, आई शुडंट हैव बीन देयर। एकदम गलत सिचुएशन है जहां पर शायद आपका कोई रोल ही नहीं है, बट फिर भी आप वहां पर उलझ गए। This will never happen if you are practicing magnificent outcomes as a daily habit. You will not find yourself at the wrong place and at the wrong time. होता है ना कभी कभी लगता है कि मैं गलत टाइम पे गलत जगह पहुंच गई थी। This was not meant for me. But why? क्यों ऐसा हो गया, हम गलत जगह गलत टाइम पे क्यों पहुंच गए? Because we attracted it somehow, right? And no matter what happens, कुछ भी हो आपके दिन में, you know that you will always attract magnificent outcomes. Yes. At the beginning of today, choose 3 separate situations
where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Yes, तो आज क्या करना है? What is today's practice? You have to choose 3 different situations. कोई भी ऐसे 3 choose करने हैं जहां पर we are waiting, we are कुछ ऐसा हम लोगों को उसमें अच्छा results चाहिए. Anything, it can be any small big thing, कुछ भी हो सकता है ना? जैसे सोनल का अभी न्यू जॉब स्टार्ट हो रहा है, तो she can उसमें she wants magnificent outcomes, वो लिख सकती है. किसी का कुछ समथिंग न्यू इज कमिंग अप, कुछ ऐसा कोई फेस्टिवल आ रहा है, मे बी ऐसा कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी सम ओपनिंग ऑफ समथिंग, किसी का एनिवर्सरी आ रहा है, मे बी किसी को खास 25th या 50th, एंड उसमें दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग स्पेशल. किसी के बच्चों का मे बी 16th 18th बर्थडे आ रहा है. एनीथिंग जहां पर यू वांट द बेस्ट रिजल्ट्स, है ना? किसी का कोई डॉक्टरी अपॉइंटमेंट है and you are really hoping कि उसमें सब कुछ अच्छा हो. Anything, उसमें 3 चीजें आपको choose करनी है, 3 situations जहां पर you have to use magnificent outcome. और अगर suppose आपको लग रहा है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसा तो I am not कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको नॉर्मल कोई 3 बोरिंग चीजों, humdrum activities, तो नॉर्मल चीज है जहां पर ऐसा कुछ मैग्निफिसेंट नहीं होता है, इट इज वेरी नॉर्मल फॉर यू, बट वहां पर आपने ट्राई किया टू यूज मैग्निफिसेंट आउटकम्स. ओके, जनरली कोई बैंक का काम है, एनीथिंग जो आपको लगता है कि इसमें क्या मैग्निफिसेंट होगा, एनीथिंग. यस. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. बस, तो दिस इज द वे टू राइट. एवरीवन, हाँ, ठीक से देख लो, इस तरीके से लिखना है. जिस भी सिचुएशन को आपको मैग्निफिसेंट आउटकम देना है, दिस इज द वे टू राइट. इसमें टू जरूरी नहीं है लास्ट में. सपोज मेनी पीपल आर बेकर हियर ना, मैं बार बार इसलिए बेकिंग का एग्जांपल दे देती हूँ. कुछ आपको बहुत न्यू ऑर्डर मिला है एंड इट्स अ डिफरेंट जो भी, तो यू कैन राइट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम that my client, जो भी उनका नाम है, is loving the new cake which I have baked today, and that person is giving me excellent reviews about it. Okay, so इस तरह से you have used the magnificent outcome. Thank you for the magnificent outcome to my child's exam. She has performed excellent and has received lots of merit and merit cards या जो भी होते हैं उसके, जो भी आप लोगों को उसमें चाहिए एग्जाम में. इस तरीका से you have to write. It is not mandatory thank you जरूरी नहीं है. Just thank you for the magnificent outcome. ये word जरूरी है सामने आना. उसके बाद आपको जो चाहिए as if it has been already done. Yes. Okay, Dee, I just wanted to buy the mobiles for my mother-in-law. So can I use this thank you for the magnificent outcome to the store, like Samsung store, where the phone which I had decided, I just got it on a very good price. Outcome to the store नहीं, to my purchase of the new mobile phone, है ना? Outcome आप उस store पे थोड़ी डाल रहे हो, आपका purchase में आपको magnificent outcome चाहिए. Okay. So thank you for the magnificent outcome. इसलिए मैं बोल रही हूँ two हटा दो. Okay, thank you for the magnificent outcome that I have purchased the appropriate या best जो भी आपका है at the perfect price and like this. Okay, thank you so much. Yeah. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls or before you open 3 emails or 3 letters in the mail.
before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome dash. Yes, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज था, फर्स्ट प्रैक्टिस, जहाँ पे 3 सिचुएशन जहाँ पे यू वांट टू रिसीव मैग्निफिसेंट आउटकम, वहां पर यू नो कि कौन सा सिचुएशन में यू वांट टू रिसीव. बट सेकंड एक्सरसाइज इज कि जहाँ पर 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा अननोन नंबर से कॉल आया, योर मदर इन लॉ इज कॉलिंग यू, योर हस्बैंड इज कॉलिंग एंड सेइंग कि मुझे कुछ बात करनी है, योर you have to talk something important. नहीं, वो तो unexpected नहीं होगा. Someone is कोई ऐसा, हाँ, सपोज अननोन नंबर नहीं है बट ऐसे इंसान से कॉल आ रहा है मे बी जहाँ पे शायद आपका कुछ ड्यू है या समथिंग, उसमें कुछ वहां पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, एंड अब जब उसका कॉल आया एंड यू आर लाइक, ओ माय गॉड, अब ये क्या बोलना चाहता है, अब क्या बात करूं मैं, कैसे बोलूं. तो जब वो ऐसा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होगा आज, ओके, आज एंड कल 3 बजे से पहले तक, तो उसमें पहले ही आपने वो कॉल उठाया ही नहीं, यू हैवंट पिक्ड अप, एंड पहले ही यू आर जस्ट क्लोजिंग योर आईज एंड सेइंग थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस फोन कॉल, बस, ओके, एंड देन यू प्रेस्ड रिसीव. उसके बाद फोन उठाया, कुछ भी ऐसा 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यू हैव टू यूज मैग्निफिसेंट आउटकम. Yes. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you an idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yes, आज तो प्रैक्टिस करना ही है, आज की तो ये प्रैक्टिस है ही, एंड फ्यूचर में एनी टाइम जस्ट यूज इट, यू कैन यूज इट एनी टाइम, अनलिमिटेड टाइम्स. इट इज योर वेरी वेरी गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है आपका मैग्निफिसेंट आउटकम. मतलब इमीडिएटली यू कैन बी सर्टेन अबाउट द आउटकम्स इन दैट. जहां जहां पर भी लक चाहिए ना, जहां पर भी आप भाग्य के भरोसे, लक के भरोसे बैठे हो, वहां पर उसको यूज कर देना. यस. Magic practice number 21, magnificent outcomes. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Third, list your 3 things and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Fourth, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so is it clear everyone? एक बार देख लो वापस से. कोई भी 3 सिचुएशन चूज करना है जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, उनकी एक लिस्ट बना ली, यू नो, दिस दिस दिस, सेकंड दिस दिस दिस, थर्ड दिस. उसके बाद तीनों को ऐसे लिखना है 1 2 3 करके. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम that I'm loving my new job and everybody is and everybody is friendly and I'm loving the environment. जो भी, whatever you want to write, anything where you want magnificent outcome, तीनों के लिए. उसके बाद 3 unexpected events जो भी आएंगे हमारे पास आज और कल के दिन 3 बजे से पहले, ठीक है, उसमें आप पहले ही विदाउट, मतलब पहले उस पर रिएक्ट नहीं करके, पहले यू आर यूजिंग मैग्निफिसेंट आउटकम टू दैट. उसके बाद ठीक है, मैजिक रॉक है हमारा. चलो, थैंक यू सो मच वर्षा.
for reading for us. Thank you. Yes. तो कौन कौन ऐसा है जो पहले बहुत यूज करता है मैग्निफिसेंट आउटकम, इफ दे वांट टू शेयर कि उन्होंने कभी यूज किया था? यस, सुनीता दीदी. First, let's do the gratitude prayer. Yes. First, let's do the gratitude prayer. Thank you. Okay. Yes. A lot of times, especially when I'm baking. Okay. See, she is also a baker. I told you na, lots of baker. यहाँ इतने सारे bakers हैं इस group में, and Shweta is amazing. Oh my God. And also, you know, last I did was like मेरी daughter का एक बार अभी थोड़ा कुछ breakdowns चल रहा था, तो फिर उसका है ना what do you call it, thyroid में थोड़ा सा एक बार गड़बड़ आया था. So then again doctor said कि आप है ना मैं 8-10 दिन बाद में फिर से एक बार उसका प्रॉपर चेकअप करवाई थी. So before getting her reports, no, I did that gratitude and you know, magnificent outcome. And actually उसका एकदम normal सारा वो आया. Yes, wow. Yeah. Great. Yes, and we do lots of times. Yes. Shweta is my magic buddy. Magic buddy है मेरी. हम लोग always discuss करते रहते हैं. Okay, this magic, ये magic. Yes. Yeah. So yes, for our cakes, तो I'm always like, even Richa and me, हम लोग दोनों ही करते हैं, तो हम लोग हर एक चीज को का gratitude करना और फिर magnificent outcome करना कि हाँ बहुत अच्छा लगा लोगों को और बहुत you know हमारा केक बहुत ही अच्छे से बन गया, एकदम perfect बन गया and all those things. We really do that. Okay. Wow. Amazing. Very nice. Yes. इवन है ना मतलब जैसे मेरी कॉपी में एक जैसे लास्ट का सेक्शन पूरा मैग्निफिसेंट आउटकम का ही बना हुआ है. मतलब कुछ भी होता है, अरे फटाफट मेरे हस्बैंड बोलते हैं लो इसका पेन कॉपी चालू हो गया. उनको मालूम है कि नाउ शी इज राइटिंग मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दिस. ही नोज इट. सेम. तो एनीथिंग एंड आई एम लाइक चिल, सब अच्छा होगा. एंड ही इज लाइक तुम एंड तुम्हारा मैग्निफिसेंट, तुम्हारा मैजिक. एंड बट यू नो लेटर ऑन आई टेल हिम, देखा मैंने बोला था ना, बिकॉज मैंने लिख दिया था उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम. तो many times I have used and you will see. हाँ सुनीता दीदी आप बोल रहे थे ना? मैं बोली क्योंकि मैं जब से पहली बार मैजिक क्लास की हूँ, मैं आजकल हर चीज में कर लेती हूँ कि हाँ ये तो हो ही जाएगा. सब बच्चे बोलेंगे मम्मी आपको ऐसा लग रहा है, हम बोल रहे ना हम मैग्निफिसेंट कर लिए, मेरा हो जाएगा आउटकम. कल रात को ही मिंगी बोली कि मम्मी हम आएंगे नहीं आएंगे. रात को सोच के बोले मिंगी आज दीदी आ जाएगी कल. मम्मी आप बेकार मन में कहो आएगी नहीं वो कल. उसके साथ साथ खाएंगे की बोले कल कितना, कल सुबह आगे घंटे बाद आके बोलती है मम्मी दीदी आ रही है. हमने देखो मेरा मैग्निफिसेंट आउटकम ठीक हो गया ना. तो बहुत बार मैं ऐसा करती हूँ जब होता है तो. वेरी नाइस. और आप जैसे बोलते हो ना, उसको आप लिख लिया करो. अगर आपने लिख लिया है ना उसको एग्जैक्ट. मैं लिख भी लेती हूँ. जब मेरे यहाँ पूछा कि टिंकू मेरे को बोली कि दीदी लिख के करिए, और फिर वैसे ही जैसे मैंने लिखा था एकदम. ओके. वाओ, वेरी नाइस. हर समय नहीं लिखते हैं, लेकिन फिर भी लिख लेके जरूरी होता है तो लिख भी लेते हैं. यस. Okay. You won't believe, but sometimes they you know बच्चे and Yogesh ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि you know your mom's become a witch. इतना magic है. God. Yes. For the broom. Yes. Yeah. Obviously बहुत. But yeah, we are very happy. हाँ खुशबू जी आप बोलना चाहते हो कुछ? मैं बोलना चाहती थी जब मैंने ये ज्वाइन किया था क्लासेस, तो तब मेरा ना ऑफिस का स्टैंड बाय था फॉर अराउंड 15 days एंड आई स्टार्टेड. तब ऑलरेडी 1 week बीत चुका था. आई वाज लाइक नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है. मेरा शिफ्ट शुरू हो जाएगा तो मैं कैसे करूंगी. एंड ऑटोमेटिकली मेरा एक्सटेंड होते गया स्टैंड बाय.
like it lasted last month entirely. अभी फिर मुझे 1 week का मिल गया. It's like कि यूनिवर्स चाहता है मैं पूरा क्लास खत्म कर लूं उसके बाद ही ऑफिस शुरू हो. This is like very nice. Like yes. Last time क्या हुआ था? There is one करिश्मा जी, अभी वो है कि नहीं, वो ना सिर्फ वीकेंड आ पाते हैं. She is a teacher. एक करिश्मा जी करके थे सेशन में, एंड उन्होंने मुझे फोन किया कि आप 3 से 4 कर रहे हो सेशन, तो मतलब ये टाइम मुझे सूट नहीं करता, मेरा 3 से 4 ही ट्यूशंस होता है, तो प्लीज आप इसको आगे या पीछे कर लो, बिकॉज आई रियली वांट टू अटेंड. एंड मैंने बोला कि नो, आई कैन नॉट चेंज बिकॉज यही टाइम मेरा फ्री टाइम है. एंड यू वोंट बिलीव, यू नो, शी सेड कि आई रियली रियली वांट टू डू. एंड उनका नेक्स्ट या आई थिंक 2 दिन बाद ही उनका कॉल आया कि दीदी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मे बी यूनिवर्स वांटेड कि मैं ये क्लास करूं. एंड मेरा ट्यूशन जो मतलब जो उसके स्टूडेंट्स थे उन्होंने खुद ही टाइम चेंज कर दिया कि प्लीज यू नो नेक्स्ट मंथ से हम लोग जल्दी कर सकते हैं क्या. तो इट वाज सो मैजिकल एंड शी वाज लाइक यू नो नाउ आई कैन अटेंड. तो anything can happen. Yes, exactly. And trust me, I'm feeling so positive and मेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है. I'm like thank you universe for everything. Yes, and something बहुत बड़ा, बहुत good news, बहुत अच्छा is always coming to us. एकदम. I mean, yeah, कुछ भी बड़ा ब्रेकडाउन किसी के साथ होता है, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन, तो यू ऑलवेज नो कि उसके बाद एक बहुत बड़ी ड्रीम पूरी होने वाली है ना. जब होता है ना, मतलब मूवीज में भी आप देख लो या कोई वीडियो गेम्स में आपने कभी देखा है ना कि वो प्रिंसेस को बचाना होता है, उसको हीरो को स्मॉल ऑब्स्टेकल्स पहले पार कर लेता है, शुरू में बहुत स्मॉल चैलेंजेस रहते हैं, एंड जब लास्ट में उसको बचाना है प्रिंसेस को, तो सबसे हार्ड राउंड आता है ना, तभी सबसे डिफिकल्ट राउंड लास्ट में ही आता है, एंड उसके बाद ही कैन सेव द प्रिंसेस. तो ऑलवेज रिमेम्बर, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया है, दैट मीन्स इसके बाद बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आने वाली है. यस, एकदम. एंड आई एम लाइक बस ये हमेशा मेरे साथ बना रहे. यस, बिल्कुल. चलो, ग्रेट. आज की एक्सरसाइज सब समझ गए हैं एंड वी विल ऑल प्रैक्टिस दिस. यस, प्रमिला जी कुछ पूछना चाहते हैं? मेरे को एक बार सेकंड पार्ट वाला आप बोलोगे क्या? कौन बोल रहा है? नेहा. सेकंड पार्ट में ये है कि जब कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए एंड वहां पर आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो उस समय पहले ही आप मैग्निफिसेंट आउटकम दे रहे हो, देन यू आर एंटरिंग, देन यू आर, कोई ऐसा फोन कॉल, कोई ऐसा डोरबेल, डोर पर कोई आया है, तुम रूम में बैठी हो एंड यू नो समबडी इज सेइंग कि कोई आया है मम्मी, है ना, कोई आपको बुला रहा है, एंड यू डोंट नो कौन है, क्या है, एंड उस समय आप तुरंत तुमने यू नो बोला थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, एंड देन यू वेंट टू द पर्सन. ओके, भी ऐसा जहां पर अनएक्सपेक्टेड कुछ हो रहा है एंड यू आर पुटिंग मैग्निफिसेंट आउटकम टू दैट. लेकिन अगर ये कॉल नहीं आया इन 24 आवर्स या कुछ ऐसा ईमेल नहीं आई, तो हाउ वी शुड डू दिस? इट इज नॉट कोई कॉल, कोई ईमेल, कोई, इट इज नॉट दैट. कोई भी छोटी सी चीज, इट कैन बी एनीथिंग. उसमें एक लाइन था ना चैप्टर में कि वो इवेंट कितना बड़ा है या छोटा है उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू आर यूजिंग मैग्निफिसेंट आउटकम. कोई भी एक ऐसी इवेंट में जो अनएक्सपेक्टेड हो रही है आपके साथ, यू कैन यूज इट देयर. एनी स्मॉल इवेंट, ठीक है. अगर आपको लग रहा है 3 अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ नहीं हुआ, मे बी 1 ही हुआ, मे बी 2 ही हुआ, जितना भी हो यू कैन यूज. थैंक यू. या, थैंक यू दीदी. थैंक यू. अरे वाह, किताब आ गई. आप वो हिंदी वाला कर रहे हो क्या? वो मुझे थोड़ा पैरों के बारे में, हाँ, हिंदी वाला कर रही हूँ. ये बुक भी मंगाई हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. पैरों के लिए क्या लिखना है? ज्यादा से ज्यादा हमेशा यही लिखना है, धन्यवाद 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 कि मेरे पैर एकदम स्वस्थ. आवाज आ रही. धन्यवाद 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 कि मेरे पैर एकदम स्वस्थ और मजबूत हैं. मैं अपने सारे काम आराम से और क्या बोल सकते हैं,
आवाज नहीं आ रहा। आपकी मैं अपना वो नेटवर्क ठीक नहीं है आंटी, मैं क्या करूं? नहीं, नेटवर्क तो क्या है, वो करें तो आवाज नहीं आती है, पता नहीं। आप वीडियो ऑफ गूंजता कर है, लो, बाकी या तो सब अच्छा वीडियो सुने ऑफ आ कर रहा है। लो तब मैं आपको सुनेगा। हाँ। मैं अनम्यूट हो। जी आपको हिंदी में अगर आपके पास हो तो आप भेज दीजिएगा ना ग्रुप पे। अच्छा सरोज जी, मैं लिखने का आपको क्या लिख हिंदी में ना लिख के भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? होते हैं, मैं आपको हिंदी में ग्रुप में लिख कर भेज दूंगी, ठीक है? पक्का से। यस। एंड आई थिंक सरिता जी आप उनकी हेल्प कर सकते हो ना? यस, मैं उनकी डॉटर को बोल दूंगी कि कैसे लिखना है, वो बता देंगी मम्मी हाँ को। हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि उनका नेटवर्क ऐसा रहता है, आई थिंक उनकी तरफ आवाज नहीं जाती है। नहीं, मैं उनकी डॉटर को बोल दूंगी। ओके ठीक है, चलो सो बाय बाय एवरीवन। दीदी एक मिनट मुझे पूछना था। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, वो मैग्निफिसेंट आउटकम मतलब लाइक व्हाटएवर वी डू उसमें वी कैन पुट इन क्या, जैसे एक्सपेक्टेड चीज के लिए कुछ भी हो? यस, जहां पर यू वांट मैग्निफिसेंट आउटकम, जहां पर यू वांट बेस्ट रिजल्ट्स, एनीवेयर वेयर यू वांट द बेस्ट रिजल्ट्स, उस चीज का। दीदी लेकिन लास्ट में लिखा था ज्यादा यूज नहीं करना है, लेकिन आप तो पूरे हमेशा यूज कर सकते हैं। नहीं तृप्ति जी, ये ना हर चैप्टर में लिखा होता है कि यू कांट डू इट टू ऑफन, और मैं हर बार बताती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है, वहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि ये करने की कोई लिमिट नहीं है। उसका मतलब ये है कि यू कैन डू इट जितना बार यू वांट। ओके, वो देखने में लगता है कि ऐसे लग रहा है कि वो मना कर रहे हैं, बट उसका मीनिंग वो नहीं है यहाँ पर। ओके, एक तो इंग्लिश में एक सेइंग होती है, इंग्लिश में जैसे सेइंग कि यू कांट डू इट टू ऑफन, मतलब यू कैन डू इट unlimited number of times. You should do it unlimited number. Regularly. Yes. Thank you. Okay. Okay, thank you. Yes. Is there anything else? Yeah, this Suvarna ji, this we can apply to our dreams also. Yes, you can apply to your dream. Bilkul. Yeah. So hopefully it will be done. मतलब जल्दी हो जाएगा। Yes, अरे जहां पर भी you want best results, whenever, मतलब क्या बोलूं मैं, तो जैसे मेरा अभी ना कुक चला गया था 1 month बैक, एंड आई वाज रियली वेटिंग कि वो एक जो दूसरा कुक था उसका फोन ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार फोन कर रही हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है, एंड आई वाज सो, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए था। कुक नहीं होने से तो घर चलेगा नहीं ना, आई हैव अ बिग जॉइंट फैमिली है, तो हर कुछ इट इज नॉट पॉसिबल। उस दिन क्या किया मैंने, जैसे तुरंत लिखा थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट, उसका नाम है जो भी, ही इज कॉलिंग मी एंड सेइंग दैट ही इज कमिंग टुमारो। ओके, एंड मैंने फिर जस्ट एक विजुअलाइजेशन किया कि वो कॉल कर रहा है, यू नो भाभी हम आ रहा है, ऐसा करके पूरा मैंने विजुअलाइजेशन किया, एंड यू विल नॉट बिलीव विद इन 5 minutes ही इज कॉलिंग मी। 5 मिनट के अंदर उसका कॉल आया है, एंड आई वाज लाइक देखो देखो, मैंने आई शोड इट टू माय हस्बैंड, देखो देखो मैंने अभी लिखा था। वो बोलते तुम पागल हो। Can I share yesterday heart magic? Yes, bilkul. I don't know about everyone, but when I started before sleeping, I cried a lot. And then I started with my dreams, एक dreams, जो 10 dreams मैंने लिखे हुए हैं, उसको मैंने मतलब हार्ट पे हाथ right hand रख के I felt it, और फिर thank you बोला, but I cried a lot before. It's okay. Maybe something was stifled inside. कुछ ऐसा था जो निकलना चाहता था, and your heart is now very happy. Whatever was there, it came out. होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ शुरू में बहुत हुआ था। Goosebumps and tears of joy, and it was like, oh my God, yes. अगर कोई ऐसा ड्रीम है जो इतना आप उसके बारे में पैशनेट हो, and you are imagining, and your hand is on your heart, and it's बहुत लोगों के अलग अलग इमोशंस। ओके दीदी ऐसा भी कोई मतलब लाइक
कोई ड्रीम है, जैसे आई वाज वो हार्ट वाला मैजिक आई वाज डूइंग, जैसे आप कल बोले थे ना कि मतलब प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा था ड्रीम के रिस्पेक्ट में, तो मतलब लाइक उसके प्रति मतलब आई हैव टू वर्क मोर ऑन इट, या ज्यादा उसको अच्छे से विजुअलाइज करना पड़ेगा, या व्हाट इज इट? यस, या तो वो तुम्हारी ड्रीम नहीं है, तुमने ऐसे ही लिख दिए, और या फिर वो ड्रीम है बट यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज, तो मे बी वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी, है ना? जरूरी नहीं है, बिकॉज हाँ आज तक हमने कभी किया ही नहीं है विजुअलाइज, है ना? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फर्स्ट बार में हो जाए, इट्स ओके, बट करते करते हो जाएगा, एंड यू कैन गो इनटू एज मच डिटेल्स एज यू वांट। ठीक है, मैं वापस ट्राई करूंगी। हाँ, शेयर करना चाहूंगी डे बिफोर येस्टरडे, जैसे मैंने जब मॉर्निंग में उठी तो मैं मैजिक रॉक दिखा नहीं सामने, तो आई वाज टेंस्ड कि लाइक नहीं होता है कि हम लोग का कुछ ज्वेलरी खो जाता है तो लाइक वी आर टेंस्ड लाइक दैट, तो मेरा फेस एक्सप्रेशन मॉर्निंग में ऐसे ही था, तो आई वाज टेंस कि कहाँ चला गया, तो बगल में इरेजर था व्हाइट कलर का एंड इट फेल डाउन फ्रॉम माय हैंड, तो आई थॉट कि ये मैजिक रॉक गिर गया मेरे से, बट इट वाज देयर बिसाइड मी मैजिक रॉक, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, बट लास्ट नाइट दी मेरे को ना सोने में भी मैं काफी बार उठी हूँ, तो कभी नहीं उठी बीच बीच में, तो इट्स समथिंग रॉन्ग हैपनिंग विथ मी, और Why will something wrong happening with you? पागल। कल एक्चुअली मेरे को मैं 3-4 बार उठी हूँ रात में, हाँ, और परसों सुबह ये तो दी ऐसा मन में फिर मिला कि नहीं? आया कि परसों मेरे माइंड में ऐसा आया। हाँ दी, फिर मिला कि नहीं मैजिक रॉक? हाँ दी, बिसाइड में बगल में था। ओह ओके, आई वाज सो हैप्पी, मतलब लाइक जो ज्वेलरी खोया वो मिल गया। इट्स ओके, इट्स ओके, तुम पता नहीं क्या सोच ली वो नहीं मिला तो, है ना? तो जस्ट रिमूव ऑल दोस नेगेटिव थॉट्स एंड इट्स परफेक्टली ओके। ओके, डरा मत करो ऐसे। मैं दी आजकल दी मतलब लाइक जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके फादर लाइक कोविड हो गया था उनको एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब ऐसा स्टेज हो गया था, ही वाज नॉट इवन, शी वाज नॉट टॉकिंग विद मी एंड शी इज बेस्ट फ्रेंड, फिर मेरे को बोली कि जैसे उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत गिर गया है, मतलब एक्सट्रीम 80 70s में आ गया है। डोंट डिस्क्राइब ऑल दिस। नहीं मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ दी, आई एम टेलिंग कि ना मैं उसको दी, मैं ऐसा हिम्मत है, मैं उसको यही बोल रही थी जस्ट बी पॉजिटिव, कुछ नहीं है, अंकल घर आ गए, जस्ट बी पॉजिटिव, कुछ नहीं, मैं उसको बोली हूँ कि ये मैंने नेगेटिव मैं बोली नहीं कि तुम सोचो भी नहीं, एंड आफ्टर 4-5 days शी इज सेइंग कि ना इज परफेक्टली फाइन, थोड़ा वीकनेस है अभी। आई सेड देखा ना, आई सेड यू डोंट बी नेगेटिव, मतलब शी वाज सेइंग मी जो नेहा इतना कभी कभी नेगेटिव बोलती थी आज इतना पॉजिटिव में। यस ऑब्वियसली, है ना, सबको एक डिफरेंट नेहा मिली है।